Okay, so two resistors are there, equal values. First, they are connected in series to a battery source, say V, and let their values be R, and then they are connected in parallel. Same two resistors are then connected in parallel to the same battery source. In both the cases, I again repeat, the language of the question is not giving you this data directly. The language of the question is that two conducting wires of the same material, same length and equal diameters. उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला कि आर दोनों सेम है, ये हमने इंटरप्रेट किया. क्वेश्चन में इतना लिखा हुआ था कि मटेरियल सेम है मतलब रो सेम है, लेंथ सेम है मतलब एल सेम है, ओके, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है. कैसे बोला उन्होंने कि डायमीटर सेम है. तो रो एल एंड ए सेम है, इसका मतलब रेजिस्टर सेम है, वैल्यू सेम है, आर इज इक्वल टू रो एल बाय. ओके, सो दे हैव आस्क्ड इफ दीज टू रेजिस्टर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी सोर्स V and then same battery source they are connected in parallel, what is the ratio of the heat generated in both the cases. अब heat generated के हमारे पास formulas हैं I square RT V square by R into T and VIT, and we have discussed in the previous classes also कि जब हम हीट जनरेटेड के या पावर के ये फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं तो हम वैल्यूज़ सिर्फ उस पर्टिकुलर रजिस्टर की यूज़ करते हैं जिसके ऊपर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, जिस रजिस्टर के लिए हम हीट जनरेटेड निकाल रहे हैं. यहाँ पे आपको पूरे सर्किट के लिए करना है तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आप पूरे सर्किट का हीट जनरेटेड निकाल रहे हो, आपको टोटल रेजिस्टेंस ही डालनी पड़ेगी. ठीक है, तो सपोज वी यूज द वैल्यू, वी यूज द फॉर्मूला से I square RT. ठीक है, और फॉर दैट रीजन वी कैन ऑल्सो यूज द फॉर्मूला V square by R into T. ठीक है, either ways. Now the first target would be what is the resistance of this circuit. जब ये सीरीज में है तो सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी है. टोटल रेजिस्टेंस विल बी R total will be R plus R, that is 2R. ठीक है, R total कह लो या R सीरीज कह लो, एक ही बात है, R सीरीज इज 2R. और हम सपोज हीट का ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं V square by R into T या I square RT कर लेते हैं, एक ही बात है. V square by R into T अगर हम कर रहे हैं, V square होगी बैटरी वोल्टेज, R विल बी द टोटल रेजिस्टेंस जो कि यहाँ 2R है, और T एज इट इज हमने लिख दिया. ठीक है, तो हीट जनरेटेड इन सीरीज हमारी आ गई V square अपॉन 2R into T. ठीक है, नाउ कमिंग टू द पैरेलल सिचुएशन. हीट का फॉर्मूला फिर से वही यूज़ कर रहे हैं हम ताकि कंपैरिजन करना आसान हो जाए, आपको रेशो निकालना. ठीक है, तो R पैरेलल यहाँ पे कितना होगा, 1 by R पैरेलल इज 1 by R plus 1 by R which is 2 by R, और I can write down कि R parallel is R by 2. Now using this formula, this value in the formula, H is equal to V square by R into T. V square तो एज इट इज आएगा, R की जगह कितना आएगा, R by 2. ठीक है, ये R पैरेलल डाल रहे हैं यहाँ पे और यहाँ हमने R सीरीज डाली. ठीक है, तो R parallel will be R by 2 times T. This 2 will go in the numerator. It becomes 2 V square upon R into T. ठीक है, अब what are we calculating? This was heat in parallel. This is heat generated in series. You have to find the ratio of heat produced in series to that in parallel. तो मतलब आपको heat parallel अगर आई है 2V square by R into T, आपको रेशियो कैलकुलेट करना है heat series to heat generated in parallel. So we'll divide both these fractions. This is V square upon 2R into T. Okay, divided by 2V square by R into T. Now we'll cancel out the common terms. Okay, so cancelling out the common terms, V square R, T goes away. What are we left with? 1 by 2 divided by 2, half divided by 2. तो ये हाफ का जो 2 है ये डिनोमिनेटर में है, ये यहाँ चला जाएगा इस वाले 2 के साथ, तो दिस बिकम्स 1 by 4. Okay, so heat in series would be heat in parallel divided by 4. Okay, or you can say that heat in parallel will be 4 times heat generated in series. पैरेलल में हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी ऑब्वियसली, क्योंकि रेजिस्टेंस कम है, करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, एंड हेंस हीट जनरेटेड विल बी मोर.
The same answer you could have obtained if you would have used I square RT. हीट का ये वाला फॉर्मूला अगर आप यूज करते, आपकी फाइनल ऑब्जर्वेशन यही आती। हमने बस इसको इसलिए पहले नहीं किया, सो फर्स्ट ड्राफ्ट हमने ये वाला फॉर्मूला ऐसे नहीं किया सॉल्व, क्योंकि यहाँ पे आई आपको अलग से कैलकुलेट करना पड़ता है। यहाँ पे भी बैटरी वोल्टेज गिवन थी, हमने उसके फॉर्म में पूरा हीट जनरेटेड लिख दिया। अगर हम ये फॉर्मूला यूज करते, आंसर यही आता, हीट सीरीज अपॉन हीट पैरेलल वुड हैव बीन 1/4। बट आपको बस आई कैलकुलेट करना पड़ता, आई को V/R लिखते, ठीक है। और जब आप V/R लिखते तो वापस आप इसी फॉर्म पे आ जाते। बात तो वही है, आई कैलकुलेट करके V/R की फॉर्म में लिखते, क्योंकि आई दोनों सर्किट्स में डिफरेंट है, तो आप रेशियो फॉर्म में ऐसे वैल्यूज को लाना चाहते हैं जो आपस में कैंसिल हो जाए। तो हम फाइनल ड्राफ्ट ये वोल्टेज के टर्म्स में ही लिखेंगे, और इसलिए हमने V²/R वाला फॉर्मूला यूज किया। वो टाइम सेइंग है, अगर आप I²RT भी यूज करते हैं आंसर यही आता। यहाँ पे आप आई की जगह V/R डालते हैं, और V/R स्क्वायर होता है क्योंकि V स्क्वायर इंटू R इंटू टी, ठीक है। V की वैल्यू फॉर्मूला से डालते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है, R की वैल्यू जो इस सर्किट में गिवन है वो डालते हैं, ठीक है। दोनों केसेस में R डिफरेंट है, इसलिए दोनों केसेस में I डिफरेंट है, इसलिए दोनों केसेस में I²RT डिफरेंट है, ओके। Okay, so it is given the copper wire has a diameter of 0.5 millimeters, okay, and it has a resistivity of 1.6 into 10 raised to the power minus 8 ohm meter. Okay, you have to find the length of this wire, how much length will be required to make a resistance of 10 ohms. Okay, so D is given, diameter is given, so you have to convert this into meters and then find the radius, क्योंकि रेडियस ऑफ द वायर मिलेगा जब हमें, जब रेडियस ऑफ द वायर मिलेगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आएगा इसका, ठीक है। सो डायमीटर इज 0.5 mm, सो रेडियस वुड बी 0.5 डिवाइडेड बाय 2 mm, यानी कि 0.25 mm, और 0.25 मिलीमीटर को अगर हम मीटर्स में लिखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 0.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3, 1000 से डिवाइड हो जाता है अगर मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। नाउ आर पता है हमें, रो पता है हमें, एल ढूंढना है, आर पता है, स्मॉल आर दैट इज द रेडियस, ठीक है। तो एरिया निकालेंगे इससे, एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है वायर का, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर, पाई इज 3.14, आर स्क्वायर इज इसका स्क्वायर 0.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको यहीं पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3.14 इंटू 0.25 का स्क्वायर 0.0625, 25 का स्क्वायर 625 होता है, 0.0625 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 का स्क्वायर, 10 रेज़ टू द पावर -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 रेज़ टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। अब हम R इज इक्वल टू रो एल बाई ए फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे ताकि हमें L की वैल्यू मिल जाए, विच विल बी R A बाय रो, ओके। सो पुटिंग द वैल्यूज ओवर हियर, व्हाट डू वी गेट, L ढूंढना है, R इज 10, A की ये वैल्यू जो हमने अभी एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करी है, बस वैसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखी थी, डिवाइडेड बाय रो, रो की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8। अब ऐसे क्वेश्चन में देखो 2 मार्क्स से ज़्यादा का ये होता नहीं क्वेश्चन, ठीक है। अगर 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आता है तो 2 मार्क्स का ये होगा, 1 मार्क का कोई और पार्ट होता है, ठीक है। ऑनलाइन असेसमेंट में तो अभी पैटर्न हमारा 3 मार्क्स के क्वेश्चन का सिर्फ केस स्टडी बेस्ड है, बट इफ एट ऑल इन बोर्ड्स, ओके, इफ इट्स अ 3 मार्क, इट्स अ 2 मार्कर, तो आप इस कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते, सो वी विल ट्राई टू अप्रॉक्सीमेट थिंग्स, ओके। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये करनी है, 10 की जितनी पावर्स हैं उनको कंबाइन कर दो, ओके। वी आर ट्राइंग टू सिंप्लीफाई, 10 की जितनी पावर्स हैं उनको कंबाइन कर दो, और बाकी बचे हुए नंबर्स को यू कीप देम असाइड। सो L विल बी 3.14 इंटू 0.0625 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6 प्लस 1 प्लस 8, ये 8 नीचे से
न्यूमरेटर में जब जाएगा इट विल बिकम प्लस। ओके, तो 8 + 1 9 - 6 3, ठीक है। तो ये बच गया 3.14 इंटू 0.0625 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1.6. How much is this? If you take consideration of this 10⁻³ here, this becomes 62.5. Okay, तो वो 10⁻³ को इंक्लूड कर लेते हैं। ये बना 3.14 इंटू 62.5 डिवाइडेड बाय 1.6 मीटर्स, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं 314 और 3.14 है और 1.6 है, इसको डिवाइड करा जा सकता है, ठीक है। डेसिमल हटा लो बेशक, ये डेसिमल अगर हम रिमूव कर देते हैं व्हाट आर वी लेफ्ट विद, ठीक है। मल्टीप्लाई दिस टू नंबर्स 3.14। आप ये कर सकते हैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेट करने के लिए, यू कैन टेक 3.14 एज 3, ठीक है। 3.14 को अगर आप अप्रोक्सीमेट करते हैं एज 3, आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर जो आएगा दैट विल बी नियर टू द एक्चुअल आंसर, ओके। सो यू कैन कंसिडर दैट अप्रोक्सीमेशन। Okay, so since we have approximated the values, so we get the final answer as 117.1 meters. Okay, if you consider the exact values, you will get somewhere around 122 meters. Okay, so be careful, you have to mention this approximate sign, or you can write down in brackets that you have calculated the approximate length of the wire by considering an approximation at the end. Okay, so VI values are given. V is given in volts, I is given in amperes, and you have to plot the VI graph. Remember, you won't be given a graph paper for this. You have to plot by your own scale, okay, by approximations. ठीक है, so ये x axis पे हम I को plot कर रहे हैं। I की इतनी values हैं हमारे पास 1, 2, 3, 4, ठीक है। 0.5 हम बीच में कंसिडर कर लेंगे। सिमिलरली आप कैसे सिलेक्ट करोगे, वाई एक्सिस पे स्केल 1.6 से लेकर 13.2 तक जा रहा है, ओके। सो यू कैन टेक द स्केल फ्रॉम एट अ गैप ऑफ 2, सपोज 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, okay, this will include all the values here. So let us start plotting the values just the way you do in maths. Like the first point is, when I is 0.5, V is 1.6. Now you are not using a graph paper. How will you plot? When I is 0.5, 0 और 1 के बीच में यहाँ कहीं होगा 0.5, and V is 1.6. 1.6 0 और 2 के बीच में होगा 1, तो 1 से थोड़ा सा ऊपर हम 1.6 एज्यूम कर रहे हैं। अंदाजन हमने ढूंढा कि 1.6 must be somewhere here, okay. Similarly, when I is 1, V is 3.4. I 1 है, V 3.4 है। 2 और 4 के बीच में 3 ढूंढा, 3 से हल्का सा ऊपर कर दिया 3.4, क्योंकि ग्राफ पेपर नहीं है, हम अंदाजे से मार्क कर रहे हैं पॉइंट्स। ये है कोऑर्डिनेट 1 और 3.4 वाले। थर्ड है when V I is 2, V is 6.7. 6 और 7 के बीच में होगा 7, और हमारी वैल्यू क्या है 6.7, तो 7 से थोड़ा सा नीचे एक तरह से ले रहे हैं, 7 से हल्का सा नीचे रहेगा पॉइंट, ठीक है, 6.7. Then when I is 3, V is 10.2. 10 से हल्का सा ऊपर लेंगे 10.2. When I is 3, V is 10.2, ठीक है। And when I is 4, V is 13.2. जब I 4 है, V 13.2. 12 और 14 के बीच में 13, उससे हल्का सा ऊपर ले लेंगे 13.2, और ये प्लॉट हो गया लास्ट पॉइंट 4 and 13.2. Okay, so these are your points, and now you will be joining all these points to represent the graph. And remember, जब आप Ohm's law का ग्राफ बनाते हैं, your line should pass through the origin. आपकी ओरिजिन से लाइन जानी चाहिए, बाकी जो पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं ठीक है, जो नहीं आ रहे हैं लीव देम। जरूरी नहीं है आपके सारे पॉइंट्स लाइन पे आए। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एरर्स होते हैं, ऑब्जर्वेशनल एरर हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट में एरर हो सकता है, रीडिंग लेते टाइम हमने सर्किट को ऑन छोड़ दिया हो, उससे एरर आ सकता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा आ जाती है हीट की वजह से। सो देयर कैन बी वेरियस रीजंस फॉर एरर इन द कैलकुलेशंस, इन आवर ऑब्जर्वेशंस। यू हैव टू लेट देम बी देयर। आपको मैनिपुलेट नहीं करना है रीडिंग्स को कि आप जबरदस्ती वन लाइन के ऊपर ले आएंगे, ठीक है।
तो हम 0 से पास होती हुई लाइन ड्रॉ करेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को अकोमोडेट कर ले। जितने पॉइंट्स अकोमोडेट हो गए ठीक है, जो नहीं होते लीव देम। ठीक है, अभी ये लाइन इनफैक्ट स्ट्रेट नहीं बनी है इससे। आई थिंक दिस वन इज बेटर, ये कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रेट है। आई एम नॉट यूजिंग स्केल टू ड्रॉ, यू पीपल हैव अ स्केल फॉर ड्राइंग, तो आप उस हिसाब से ड्रॉ कर लेना। ठीक है, सो यू कैन सी देर आर सम पॉइंट्स विच आर शिफ्टेड फ्रॉम द लाइन। जैसे ये फर्स्ट पॉइंट है, ये लाइन से थोड़ा सा शिफ्टेड है। जो लास्ट पॉइंट है वो स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा शिफ्टेड है। लेट इट बी, नॉट अ प्रॉब्लम। आपकी लाइन ओरिजिन से जरूर पास करनी चाहिए, बट बिकॉज ओम्स लॉ सेज व्हेन v is 0 i is 0, तो 0 पॉइंट जरूर पास होना चाहिए। ठीक है, so this is the graph. Now using the graph you have to find the slope of the graph, which is the resistance of the graph. तो slope निकालने का तो तरीका हमारा वही है, we select any two random points on the graph. ठीक है, उन दोनों पॉइंट्स को हाइपोटेन्यूस मान के हम राइट ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं। स्लोप का निकालने का तरीका यही है। और अब इस राइट ट्रायंगल की हाइट को बेस से डिवाइड कर देंगे। ओके, so when we do that, when we divide the height of this right triangle with the base, हाइट कितनी है इसकी, ये कौन से दो पॉइंट सिलेक्ट किए हमने, 1 और 3 पे। आई जब 1 और 3 है, ये वाले पॉइंट सिलेक्ट किए हुए हमने। सो स्लोप यानी कि आर विल बी, हाइट कितनी है, 1 और 3 वाले पॉइंट्स की हाइट का डिफरेंस कितना है, देखो 10.2 माइनस 3.4, 10.2 माइनस 3.4 डिवाइडेड बाय 1 और 3 है बेस में, तो 3 माइनस 1। ओके, हाउ मच विल दिस बी, 10.2 minus 3.4 divided by 3 minus 1. We are calculating the slope of the VI graph in the answer. So when we calculate the slope, it comes out to be 3.4 ohms. So that is the slope of the graph or the resistance of this wire जिसका हमने VI graph plot किया। Okay, so commercial unit of energy, the unit of energy which is used for bell calculation, and it is a bigger unit of energy, kilowatt hour. That is the commercial unit of energy. ठीक है, ये कहाँ से आया, क्योंकि हमें पता है एनर्जी होती है पावर अपॉन टाइम, पावर इनटू टाइम, सॉरी। तो हमने पावर इनटू टाइम का यहाँ यूनिट यूज किया हुआ। पावर का यूनिट वॉट होता है, ऐसा यूनिट, बट हमने बिगर यूनिट लिया है तो वो हो गया किलोवाट। और टाइम का यूनिट ऐसा यूनिट सेकेंड्स होता है, बट हमने बिगर यूनिट लिया है, दैट इज आवर्स। तो किलोवाट आवर इज अ बिगर यूनिट फॉर कैलकुलेटिंग एनर्जी, क्योंकि जब हम बिल कैलकुलेशंस करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की बात कर रहे होते हैं, एंड हेंस द एनर्जी यूनिट्स used is calculated in kilowatt hour. It's just like, जैसे हम अगर इस चौक की लेंथ बताएंगे तो हम सेंटीमीटर्स में बताएंगे, लेकिन अगर हम दो सिटीज के बीच का डिस्टेंस बताएंगे तो हम किलोमीटर्स में बताएंगे। ठीक है, वही हो रहा है यहाँ पे भी। जब हम ज़्यादा बड़े नंबर्स के साथ डील करते हैं तो हम यूनिट को बड़ा कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारे नंबर छोटा हो जाए, क्योंकि बहुत ह्यूज नंबर्स के साथ डील करना और कैलकुलेशन करना विल बिकम डिफिकल्ट। ओके, सो किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, और 1 किलोवाट आवर को हम 1 यूनिट भी लिखते हैं। 1 किलोवाट आवर is also known as 1 unit. Okay, and we can also find out the relation between 1 kilowatt hour and joule. That means the relation between the commercial unit and the SI unit of energy. अब जैसे 1 किलोवाट आवर है, 1 किलोवाट को हम 1000 वाट लिख सकते हैं, ठीक है, और 1 आवर को हम 3600 सेकेंड्स लिख सकते हैं। So what will this number become? This number becomes 3.6 into 10 raised to the power, देख लीजिए आप कितने यहाँ पे डिजिट्स आ रहे हैं, 6 जूल्स। ठीक है, वॉट इनटू सेकंड को हम जूल्स लिखते हैं। सो वी हैव डिराइव्ड द रिलेशन बिटवीन द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी एंड द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, दैट इज 3.6 into, so this is the conversion between the commercial unit and SI unit of energy। ठीक है, और इसके ऊपर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं, दैट अ हाउसहोल्ड कंज्यूम्स 320 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाउ मच इज दिस इन जूल्स। तो आपको यूनिट्स में या किलोवाट आवर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी गिवन है, एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू जूल्स। so how do you do that? 1 unit is 3.6 into 10 raised to the power 6 joules, तो 320 यूनिट्स कितने जूल्स होंगे, 320 यूनिट्स विल बी 320 into the conversion factor, 3.6 into 10 raised to the power 6 joules। Okay,
यू कैन सी कि कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कंपैरेटिवली बिगर यूनिट है. 1 किलोवाट आवर लिखना पड़ता है आपको इंस्टेड ऑफ राइटिंग 3.6 into 10⁶. Okay, so convert this 320 units into joules. How much do you get? All of you to calculate and give me the answer. How much is 320 units of energy in joules? Have you calculated? It's just a multiplication. All of you to calculate. Okay. Vandit has given the answer. It's a huge number. Vandit, write it in scientific notation. 10 raised to the power में लिखो ताकि समझने वाले को समझना भी आसान हो. ठीक है. पेपर में भी ऐसे ही करना है और आगे लाइफ में जब साइंस की कोई भी कैलकुलेशन करेंगे आप तो ध्यान रखिए ऐसे ही करना. Okay, good. Most of you are giving me the answer. What about others? Please calculate, all of you. Okay, so this is what we get once we calculate the total energy in joules. It comes out to be 1.152 into 10 raised to the power 9 joules. Okay, so another format of questions based on the kilowatt hour unit is the calculation of cost of electrical energy. A household uses the following: one bulb 80 watt 10 hours per day, one fan 60 watt 12 hours per day. You have to find the cost at the rate of ₹3 per unit. ठीक है, तो पहले हम बल्ब की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी यूज हो रही है वो निकाल लेते हैं. एनर्जी इज पावर इनटू टाइम, दैट मींस 80 into 10. Okay, that will be 800 watt hour. किलोवाट आवर में कितना होगा ये? 0.8 किलोवाट आवर पर डे. ठीक है. सिमिलरली अगर फैन की बात करें तो एनर्जी का हो गया पावर इनटू टाइम 60 into 12. हाउ मच इज दैट? 720 किलोवाट आवर, सॉरी 720 watt hour. ठीक है. एंड दिस विल बी 0.72 kilowatt hour. तो पर डे bulb is consuming 0.8 kilowatt hour, the fan is consuming 0.72 kilowatt hour. तो total energy consumed कितनी है per day? 1.52 kilowatt hour. Total energy consumed per day is 1.52 kilowatt hour. अब 1 किलोवाट आवर 3 रुपीज का है तो 1.52 किलोवाट आवर कितनी कॉस्ट होगी वो आपको कैलकुलेट करना है. ओके, दिस इज फॉर वन डे ओनली दैट यू हैव टू कैलकुलेट. सो cost will be 3 into 1.52, which is, when we multiply we get the cost as, so the final cost for consuming the electricity by these two devices is coming out to be ₹4.56. this is the cost for one day. अगर आपको बिल कैलकुलेशन पूरे मंथ के लिए आती है तो आप इनटू नंबर ऑफ डेज कर दोगे डिपेंडिंग अपॉन द मंथ. ठीक है. If it is given that the month is of 30 days, you will multiply it with 30. If the month given is of 31 days, you will be multiplying 31. Okay. So depending on the month given, you will be multiplying that number to calculate the total cost. Okay, class. So this is the next question where you have to find the cost of using electrical energy for the month of June if two bulbs 60 watt each are used for 10 hours per day and a refrigerator 1200 watt is used for 12 hours per day. You have to find the cost of the electrical energy for the month of June at the rate of ₹3 per unit. So again, following the same steps, you will first calculate the energy consumed by the bulb per day. So energy will be power into time, so 60 into 10, and there are two bulbs, so that 2 will be multiplied here. So this comes out to be 1200 watt hour per day. Okay, so 1200 watt hour will be 1.2 kilowatt hour.
Similarly, doing it for the refrigerator, energy power into time, that is the working formula here. So please keep that in mind. Energy is power into time. So refrigerator is 1200 watt power, time is 12. So that comes out to be 14400 watt hour. Okay, and converting into kilowatt hour, it will be 14.4 kilowatt hour. Now these are energy consumed per day. Okay, so per day energy consumption is coming out to be 25.6 kilowatt hour. This is 1 day consumption. E consumed in 30 days, because June is a month with 30 days, so that will be 25.6 into 30. So how many kilowatt hours is this? 25.6 into 30. So that is 768 kilowatt hours consumed in 30 days. Now coming to the cost. If one unit is 3 rupees, 768 units will be 3 into 768. How much is that? What is the cost of electrical energy? So the cost of electrical energy is coming out to be rupees 2304 for the month of June.